कहते हैं रोज करोगे योग तो रहोगे हमेशा निरोग। योगा करने से हमारे जीवन में आती है शांति और स्वास्थ्य, और जहाँ शांति और स्वास्थ्य होते हैं वहाँ समृद्धि तो आनी ही आनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो मी एंड मेंटर्स विद वैदिका सरवानी। और आज का हमारा टॉपिक है योगा। और इस कन्वर्सेशन में आज हमारे साथ जुड़ने वाली है बहुत ही ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड मिस गरिमा भंडारी, जो योगा एंड वेलनेस कोच है। Namaste, I'm Garima Bhandari, your yoga and wellness coach and an inside-out transformation guide. And I'm Hi Garima ji. Hello, good evening. It's a pleasure to have you on my show. My pleasure too. We have been planning this for long and finally it's happening. Yeah, and you are looking very pretty. And Thank you, so are you. And I hope कि आज हमें फिटनेस के साथ साथ आपके ब्यूटी सीक्रेट्स भी जरूर जानने को मिलेंगे। 100%. So Garima ji, let's start by asking you, what is yoga according to you? Okay, in simple words, if I have to say, yoga for me is life, it's lifestyle, and it's everything. Every day, my day begins with yoga practice, and it is part of my life. For me, yoga is not just physical asanas or doing pranayama to stay fit or feel good, but it is a lifestyle. So when I say lifestyle, we also believe in sustainability, we also believe in green life, we also believe in making small initiatives and efforts towards saving the planet and kind of cutting down the carbon layer. Okay. So what is the importance of yoga in today's life? In today's time, first thing I would say, because of this COVID-induced lockdown, physical health is gone for a toss for sure. We need our immunity to be strong. But mentally, we have to take care of ourselves first, because mental health, we are seeing that the cases are escalating globally now. And unfortunately, during this tough time, the mental health professionals are not even able to rescue people, because some people are able to open up that there is something going wrong with them. Some people are there who are not even able to understand that something is wrong. And then there are some people who are left to be quarantined alone somewhere away from the family. Some people are there who are losing jobs. So there are too many things that are happening which is taking a toll on mental health. So yoga comes as a one size fit all solution, which is an easy way, I would say, a tool with you that you can use and apply and modify to safeguard your internal immunity, disease fighting mechanism, and also work on your mental well-being. Remove your stress, anxiety, depressive thoughts, irritability. So that way, that is where the yoga comes as a magic potion. Definitely, very true. तो गरिमा जी, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आपकी लाइफ में योगा कैसे आया, एंड योगा करने से आपकी लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? Okay, so my background also comes from where I was completely in depression. I also had postpartum depression, you can say, after pregnancy. A lot of women go through it. So I was going through it, and I did not even realize that I was going through it until it became like really, it took a toll on me physically, every way. So during that emotional turmoil, I had a miscarriage, a very bad miscarriage, and losing a child, again took a very bad impact on my emotional health. And I would never be happy, so I would wonder that what's wrong. Like, every woman wants to have a child. I have a beautiful child, and what is wrong that is just not working? So when I understood that this is what it is, it was late. But then luckily I was
they say, that you don't go and pick yoga, yoga just picks you up. Yeah. So I was accidentally pregnant again, and I went for my prenatal classes, and that's it. There was no looking back. I was still, like, I did not understand the deeper meaning of this transformative practice, the impact that it brings, and that came with gradual practice. First it was just on a physical plane, but then I realized the holistic benefits of this integrated practice. Okay. So योगा करने से क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया आपकी लाइफ में? सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन तो ये था कि अपने जो भावनाओं को नियंत्रण में करना, वो किसी और के पास आप वो चाबी ढूंढते रहते हो हमेशा, कि अगर मैं अपनी सिटी चेंज कर दूं, शायद मेरी सिटी खराब है, मेरा एनवायरनमेंट खराब है, तो आप वो करते हो, आप अपनी जॉब चेंज करते हो, आप सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को चेंज करने की कोशिश करते हो। बट योगा से मुझे ये समझ में आया कि इंटरनली अपने आप को कैसे, अपने जीवात्मा को अपनी अंतरात्मा से कैसे जोड़ना है। योग जो शब्द है वो युज वर्ड से मिला है, संस्कृत का। इसका शाब्दिक अर्थ ही यही है कि किसी चीज को आपस में जोड़ना और आपस में लाना। सो to empower yourself emotionally and be able to enrich yourself, और जो एक तरह से बोलते हैं ना कि खुशी ढूंढते रहना, जब बाहर के फैक्टर्स को चेंज करते हैं, जॉब चेंज करना, सिटी चेंज करना। तो इस प्रैक्टिस से मुझे ये सीखने को मिला कि योग का असली अर्थ, शाब्दिक अर्थ यही है कि किसी भी चीज को आपस में जोड़ना, मिलाना, पास लाना। और इसकी डिस्कवरी, ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस इसे बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा को जीवात्मा से मिला सकते हो सका तो परमात्मा से भी मिला सकते हैं, बट उसके लिए बहुत तरह की साधना और धारणा करने की आपको जरूरत है समय के साथ साथ। बट सबसे बड़ी योग यही है कि आप नॉन वायलेंस की जिंदगी जिए, अहिंसा की जिंदगी जिए, किसी भी दूसरे जीव के प्रति आपको प्यार हो, काइंडनेस हो, कंपैशन हो। एंड अगर एवरीबडी डज देयर पार्ट, देन दिस वर्ल्ड कैन रियली बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। वेरी वेल सेड, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो गरिमा जी, मैं भी स्पेशली यूथ के लिए भी पूछना चाहूंगी कि आज का यूथ जैसे डिजिटल वर्ल्ड में जी रहा है, नेटफ्लिक्स, बिंज वॉच, सोशल मीडिया, इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, और इनकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल काफी हद तक बिगड़ चुकी है, और लाइफस्टाइल बिगड़ने से उनकी फिजिकल हेल्थ पे तो इफेक्ट आ ही रही है, साथ साथ में मेंटल हेल्थ भी उनकी कहीं हिट हो रही है। तो यूथ को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए योग के प्रति? ओके, सो यूथ के नाम से मेरे घर में ही दो यूथ हैं दो बच्चे। सो मैंने उनको कभी भी इतना डिजिटली एक्सपोज नहीं किया था, बट कहते हैं ना, समय के साथ चलना जरूरी है। तो अभी तो नीड ऑफ द आवर है, तो उनकी सारी क्लासेस वहीं से हो रही हैं। एंड अगर उनके पास खेलने के लिए भी बाहर पार्क जाने के लिए साधन नहीं है, तो फिर घर पे ही उनको PS4 खेलना भी, तो काफी डिजिटल है। तो मैं उनको बोलती हूँ बस एवरी डे ट्रिपल D वाला फिलॉसफी अपनाएं, विच इज डेली डिटॉक्स, डेली डिजिटल डिटॉक्स। सो ये ट्रिपल D हमारे लिए एक्टिवली बहुत जरूरी है। अपने पूरे स्केड्यूल में आप उसको इंक्लूड करें। अगर आप रखते हैं कि सुबह 10 से 12 मेरी जूम कॉल है, उसके बाद मेरा लंच टाइम है, उसके बाद मेरा नैप टाइम है, उसके बाद फिर मेरी क्लासेस हैं, तो बीच में वो 1 घंटे का जो मी टाइम है, उसे आप कहीं ना कहीं अपने स्केड्यूल में जरूर ट्वीक करें। उस मी टाइम का ये मतलब नहीं होता कि आप नेटफ्लिक्स करें या फिर आप वापस से वही कोई स्क्रीन में कोई भी आपने लूडो खेल ली, जो मैं आजकल देख रही हूँ। ऑफ डिजिटल मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप म्यूजिक करें, पढ़ें, कुछ भी मत करें। अपने आप में अगर आप समय व्यतीत करें, वो ही बहुत अच्छा एक मैं बोलती हूँ एक्टिव मेडिटेशन है। चाहे आप पूरे दिन में एक मील अकेले खाएं बैठ के, दैट इज ऑल्सो अ मेडिटेशन। सो इस तरह का एक एक्टिव डेली डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प इन द लॉन्गर रन। ओके, वैसे ही कहा आपने, क्योंकि यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि जहां तक मतलब अगर फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट रखती है, वहां मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रखती है, ऐसे करके। और अभी तो जैसे हॉट टॉपिक डिस्कशन हो गया है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन काफी सारा यूथ में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने रिसेंटली सुसाइड केसेस भी देखे हैं।
तो गरिमा जी, मेंटली खुद को कैसे हेल्दी रखा जाए? मेंटली सबसे पहले तो अपने आप को आपको ये बताना जरूरी है, एवरी डे पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत जरूरी है। एक तो सुबह उठ के आप अपने आप से जब आप अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं, तो अपने लिए अपने आप से अच्छी चीजें बोलें। पूरे दिन तो आप फ्रेजेस ही देते हैं, सबको देते हैं, सबके लिए करते हाँ, हैं, यू ऑलवेज अ हाँ, प्रोवाइडर, यू ऑलवेज अ गिवर, बट यू नो हम्म, इट नेवर कम्स बैक टू यू। सो the kind of affirmations you give yourself, the same whole day long, you're going to manifest them to other people. That kind of positive energy you have to first feed your brain. हाँ, So I'm credible, I'm positive, I'm strong, you know, these are the kind of things you tell yourself. And also there's one more important thing that you should you know, if you're feeling नकारात्मक कुछ आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, जो कि एक नेचुरल अवस्था है इस तरह की करंट सिनारियो में, yeah, तो ऐसा तो कोई फुल प्रूफ मेथड ही नहीं है कि आप हर समय खुश रह सकते हैं, तो फिर तो आप इंसान ही नहीं है। तो आप इंसान है तो नेगेटिव और पॉजिटिव और यिन एंड yang का ब्लेंड होगा ही, क्योंकि आपकी एक साइड होती है जो कि होती है बहुत ही पॉजिटिव, रैशनल एंड प्रैक्टिकल एंड लीनियर अप्रोच साइड होती है, दूसरी होती है बहुत ही वल्नरेबल होती है और बहुत ही इमोशनल होती है। और जब आप जीवन में, अपनी जीवन शैली में इन दोनों का एक संयम बांध लेते हैं, हाँ, तो उससे उससे फिर आप एक सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं। तो योगा की प्रैक्टिस से आपको एक तो वो बैलेंस, इक्विलिब्रियम जो होता है ना, वो समझ में आ जाता है। और दूसरा मैं बता रही थी कि दूसरा एक तो पॉजिटिव एफर्मेशंस आप करें, दूसरा बहुत जरूरी है, एक पॉइंट मेरे दिमाग में था शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी आजकल आई डोंट नो व्हाट आई वाज सेइंग, बट बहुत जरूरी है कि मेंटली अगर आपको इस तरह से अपने आप को एक्टिवली नेगेटिव थॉट से, कीप योरसेल्फ सराउंडेड विद पीपल, कीप योरसेल्फ सराउंडेड विद थिंग्स दैट कैन टेक यू अवे। एक कुछ नहीं है तो क्विक फिक्स है डीप ब्रीथिंग। आप जहां पे भी हैं, जिस समय पे भी आपको लगता है कि आप बहुत और किसी से ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, तो बस डीप ब्रीदिंग, उज्जयी ब्रीदिंग करें, अपनी ब्रेथ से अपने आप को कनेक्ट करें। सो ब्रीदिंग भी एक बहुत ही एक्सीलेंट तरीका है, एक क्विक फिक्स है, आई वुड से रेस्क्यू रेमेडी है किसी भी, क्योंकि वो क्या होता है ना, एक ब्लैकआउट फेस होता है जहां पे आपको लगता है कि बस नथिंग इज वर्किंग नाउ। सो इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, quick breathing or reaching out to someone is the best thing if you can. And एक त्राटक भी हम बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट को, सपोज ये पेंसिल है तो इसके पॉइंट को गेज करना, इस तरह का भी आप ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपका जो सारा थॉट प्रोसेस है वो एक चित्त हो जाता है, इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। क्योंकि माइंड आपका भटक रहा है फ्यूचर की वरीज में, चाहे वो डेडलाइंस हैं, बिल्स पे करना है, क्योंकि वो वरीज तो वो वैसे ही वो जीवन में रहेंगी आपके, हमेशा आपके स्ट्रेस करने से, कुछ करने से वो ना घटेंगी ना बढ़ेंगी। सो उससे आप अपने हेल्थ को और ज्यादा किल कर दोगे अगर आप उसके बारे में ही सोचते रहोगे। स्लीप आपको ढंग से नहीं आएगी, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। और स्लीप हम सब जानते हैं अगर ढंग से नहीं आए 7 to 8 आवर्स कितनी एसेंशियल है, तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है पॉजिटिव थॉट्स को फ्लोट करने के लिए। एंड प्लेइंग विद योर किड्स इफ यू हैव एट होम, और you know, taking up a hobby. I'm sure everybody is saying these things, but it really does work, so try it. Yeah, that's true. So meditation and pranayams भी जैसे हैं वो भी काफी हेल्प आउट करते हैं इन सिचुएशंस में। See, meditation, I would say that I don't know what people understand from the meaning of meditation, because it is a very higher practice. So somebody who has just come today for the first time on the practice of yoga, or has not even done any yoga and just straight away says I want to do meditation, so it is a very, you know, advanced stage कि आप क्या मेडिटेशन, आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि अपने मन की, माइंड जिसको हम बोलते हैं, उसको कैसे नियंत्रित करना है। तो वो पहले वो अष्ट अंग, मतलब 8 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि ध्यान, धारणा, समाधि लास्ट में आता है।
पहले आपको ब्रेथ कंट्रोल सीखना होता है। काफी वाइटल एलिमेंट्स होते हैं योगा की प्रैक्टिस में, बंधास होते हैं, दृष्टि होती है, फिर उसके बाद आपकी ये विन्यासा होती है, आसना प्रैक्टिस होती है, जिससे आप अपने पहले तन की क्लीनिंग करते हैं। फिर जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप मन की क्लीनिंग करते हैं। फिर आप इन दोनों के मिश्रण से धीरे धीरे ध्यान और धारणा की अवस्था में जाते हैं। सो मेडिटेशन आई वुड से कि आप प्रैक्टिस करें आसना की, पहले शुरू में अपनी ब्रेथ को उससे कंबाइन करें, अपनी ब्रेथ की ट्यून, ब्रेथ के रिदम को समझें, उसको कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है, डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का अर्थ समझें, उसे करें। उसके बाद जब आपका बॉडी क्लेंस होगा, आपका ब्लड थोड़ा सा पतला होगा, डिटॉक्सिफाई होगी बॉडी, उसके बाद आप, वो आपका मूविंग मेडिटेशन है, वो ही आपका मेडिटेशन है। क्योंकि जब आपको मैं बोल रही हूँ कि आप ट्री पोज करो, तो आप अपनी बॉडी को एक लेग पे बैलेंस करोगे, कैसे करोगे? जब आपका माइंड यहाँ है, प्रेजेंट पे है ना। यू कांट बी थिंकिंग कि अरे परसों मुझे वो ईमेल, एक डेडलाइन है मेरी, मुझे वो फिनिश करना है, और या फिर मुझे वो परसों अपना रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है। वो करते हुए तो फिर तो ट्री पोज हो गया, आप गिर जाओगे। सो आसना की प्रैक्टिस में एक मूविंग मेडिटेशन है, जिसमें आप अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आते हो, अवे फ्रॉम द वरीज ऑफ फ्यूचर to the present moment, and cultivate a sense of deeper awareness where you take entire concentration to the realm of your inner consciousness. That is very important. That is your real meditation. बहुत सही कहा आपने। गरिमा जी, मैं स्पेशली किड्स के लिए भी पूछना चाहूंगी कि मोस्टली पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बच्चों का फोकस, बहुत लैक ऑफ फोकस फेस करते हैं, या मेमोरी पावर काफी वीक है। पेरेंट्स को ऐसे अपने बच्चों को क्या प्रैक्टिसेस करवाने चाहिए जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? बहुत ही अच्छे आसनास हैं, इजी आसनास हैं जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ आसना के साथ साथ जरूरी है कि बच्चे प्राणायाम जरूर करें। अनुलोम विलोम जो होता है, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, उस तरह का प्राणायाम बहुत जरूरी है। या फिर भ्रमरी प्राणायाम एक्सीलेंट होता है कंसंट्रेशन के लिए। थैंक यू कुशाग्र। Kushagra has got my tea. Yeah. So Brahmari Pranayama they can practice every day. बहुत ही आसान है Brahmari Pranayama, मेरे बच्चे भी करते हैं, और उससे ना सिर्फ उनका मन शांत होता है, बट उनका जो फोकस है, जो मेमोरी पावर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं, वो काफी, और आजकल तो बहुत ज्यादा उनको ये सब चाहिए, बिकॉज फोकस करते रहना स्क्रीन पर, इट्स नॉट इजी। अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं है जिससे बच्चों को इंटरेस्टिंग बना सके स्क्रीन्स को। उस तरह के सॉफ्टवेयर किसी पास है ही नहीं। अभी तो सिर्फ आप टीचर और अपने 30 स्टूडेंट्स को इस तरह से देखते हो। इट विल टेक सम टाइम फॉर टेक्नोलॉजी टू डेवलप इंटरेस्टिंग, गुड लुकिंग सॉफ्टवेयर्स, एनिमेशन वेयर किड्स कैन टच। सो जब तक के लिए for them to have a concentration for 6-7 hours is very very difficult. It's very easy. कहीं पे भी अपनी चेयर में बैठे हैं, उनको बोलें कि सिट स्ट्रेट रखें, और उसके बाद अपने फिंगर्स को ऐसे अपनी आईज को कवर करना है, और यहाँ पर जो कार्टिलेज होता है उसको ऐसे थंब से प्रेस करना है। ऐसे इनहेल करेंगे नाक से, ऐसे लंबा गहरा सांस, और उसके बाद एक्सेल करेंगे नाक से ही, बट एक हमिंग बी या बजिंग बी का, जो मधुमक्खी का जो भंवरे का जो साउंड होता है ना, वो क्रिएट करना है। उस तरह की ध्वनि हम करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। और धीरे धीरे आंखों को खोल। इंस्टेंट एक काम फीलिंग आ जाती है, एकदम ऐसे लगता है कि सिर्फ 5 कर सकते हैं बच्चे शुरू में। एडल्ट्स के लिए भी एक्सीलेंट है। अच्छा, उनकी इम्यूनिटी भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ती है। भ्रमरी प्राणायाम सब चीजों का एक रामबाण है। साइनसाइटिस क्लियर होता है, आईज नोज थ्रोट के जितने डिजीजेस हैं वो जाते हैं। एंड आंखों की रोशनी के लिए एक्सीलेंट है। आपके लैरिंग्स पैरिंग्स के एरिया को क्लियर करता है। चेस्ट कैविटी क्लियर होती है। ब्रोंकाइटिस की किसी को प्रॉब्लम है तो वो क्लियर होती है। माइग्रेन के इश्यूज क्लियर होते हैं। पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो काम डाउन होता है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं इस पर्टिकुलर प्राणायाम के
तो ये प्राणायाम तो किसी भी हालत में हर किसी को रोज करना है, स्पेशली आपने किड्स के लिए पूछा तो मैंने आपको बताया। हाँ, क्यों मैंने स्पेशली इसलिए पूछा कि आपके 2 स्मार्ट किड्स हैं और मैंने इंस्टा पे भी देखा है आप उनको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिसेस करवाती रहती हैं। सो yes. ये ब्राह्मी के अलावा भी कुछ और आसना है? भ्रमरी के अलावा बच्चे ट्री पोज कर सकते हैं, ताड़ आसना भी उनके लिए ब्लड सर्कुलेशन के अच्छा है और हाइट भी उनकी काफी उससे इंक्रीज होती है, फुल बॉडी स्ट्रेच है। खड़े खड़े वो कटी चक्रासन कर सकते हैं। मर्जारी आसन जो कैट काउ पोज होता है, उनकी स्पाइन की हेल्थ के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ वो पूरा दिन ऐसे स्लाउच करके जो बैठते हैं तो उससे उनका पोस्चर भी ठीक होता है। गौमुख आसना जैसे पोस्चर्स हैं जो काफी इजी पोस्चर है। पवन मुक्त आसना बच्चे लेटे लेटे कर सकते हैं। एक हैप्पी बेबी पोज जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आप लेट के अपने पैरों को ऐसे पकड़ते हैं और बस बेबी की तरह, हैप्पी बेबी की तरह ट्विस्ट करते हैं, तो वो एक्सीलेंट हिप ओपनर है। और साथ ही साथ स्टमक पे जो कंप्रेशन पड़ता है नीज को फोल्ड करने से, तो इस तरह के आसन है जो लेटे लेटे आसानी से कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट करना बहुत जरूरी है एवरी डे। और मैं तो ऐसा बिलीव करती हूँ कि जैसे कहते हैं कि बच्चे कल का भविष्य हैं, और अगर वो आज से ही योग को अपने लाइफ में लाएंगे तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो दे कैन इजीली मैनेज द स्ट्रेस ऑफ लाइफ। तो बहुत जरूरी हो गया है कि हम अभी बच्चों को मतलब योग की प्रैक्टिसेस करवाते रहें। एब्सोल्युटली। सो गरिमा जी, आप फेस योगा भी करवाती हैं स्पेशल फॉर ग्लोइंग स्किन, तो मैं चाहती हूँ आप मेरे व्यूवर्स को उसके बारे में भी कुछ टिप्स दीजिए। फेस योगा के लिए मैं ये बोलूंगी कि एक बहुत ही आसान, प्राकृतिक, नेचुरल, नॉन इन्वेजिव तरीका है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हम ब्लाइंडली, बिकॉज टू एप समबडी एल्स, हम ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं एंड दीज प्रोडक्ट्स आर रियली एक्सपेंसिव, दे आर नॉट cheap and without knowing the right, and eventually we end up saying कि मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। So just like हमारे बॉडी को हम एक्सरसाइज करते हैं, वेट्स करते हैं, ट्रेडमिल पे रन करते हैं, सिमिलरली हमारे फेस की जो फेस में भी मसल्स हैं जो कि हम ट्रेडमिल पे नहीं ले जा सकते, उससे वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, बट उन मसल्स को हम अपने हाथों से स्टिमुलेट जरूर कर सकते हैं। तो फेस योगा से रिलेटेड वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल में भी काफी मैंने अपलोड किए हैं, जो कि गरिमा भंडारी के नाम से है। लोग मेरे चैनल में उन वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे IGTV पर भी हैं, और यहाँ पर भी मैं आपको कुछ एक दो आसान आसन दिखाना चाहूंगी, जिससे कि आप लोग अगर वो नहीं रेफर कर पाए तो एटलीस्ट यहाँ पर अगर आप मेरे को देख रहे हैं तो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपल है कि एक फेस स्लिप दे रहे हैं हम अपने पूरे फेस को अपने हाथों की ताकत से। तो अपनी फिंगर्स को इस तरह से फेस डाउन करें और यहाँ से इस तरह से पुश करें, और इसको ऐसे आईज को ऐसे सरप्राइज जैसे इमोशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, वैसे सरप्राइज एक्सप्रेशन बनाना है ऐसे, और इसको 5 से 10 सेकंड के लिए ऐसे पकड़ के रखना है और फिर रिलीज। तो अपने पूरे आईब्रोज को आप चारों तरफ से इस तरह से लिफ्ट कर सकते हैं एंड रिलीज। तो इससे जो एक्सप्रेशन लाइंस हमारी बनती रहती हैं बिकॉज हम सोचते हैं, उसमें काफी मदद मिलती है। आईज के साइड में आप इस तरह से डायगोनल रख के अपनी फिंगर्स को यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ को जाके, तो ये जितने भी आईज के पास वो क्रोज फीट या रिंकल्स आते हैं उसमें काफी हेल्प मिलती है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं ये बताना चाहूंगी व्यूअर्स को कि सबसे आपके फेस में प्रीमेच्योर साइंस ऑफ एजिंग और रिंकल्स और पिगमेंटेशन क्यों आते हैं, क्योंकि आप हमेशा से प्रोडक्ट्स, तो शायद रॉन्ग लगा रहे प्रोडक्ट्स का मुझे पता नहीं, बट एप्लीकेशन का जो तरीका है वो राइट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग प्रोडक्ट्स फेस पे लगा लेंगे तो नेक को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेक में भी लगाना बहुत जरूरी है बिकॉज ये स्किन कनेक्टेड है। दूसरा, सारे के सारे मूवमेंट्स अपवर्ड होने चाहिए। कभी भी आप अपने फेस को ऐसे टावल की तरह निचोड़ना नहीं है, कपड़ा नहीं है ये। So I've seen a lot of people take product and then just like go like that. So even I've taught my kids how to do that, and I have been doing it for many years. Perhaps that has really helped me. So you take the product in your hand, जितना भी आपको चाहिए, 1 2 3 ड्रॉप, उसको यहाँ निकालो, यहाँ से अपनी फिंगर से पहले डॉट्स बनाओ, उसके बाद नीचे से स्टार्ट करना है, यहाँ चिन से यहाँ से स्टार्ट किया, नेक से ऊपर अपवर्ड, नीचे तो कभी भी नहीं, अपवर्ड स्ट्रोक्स,
फिर यहाँ पर अपवर्ड स्ट्रोक्स, फिर नोज में यहाँ डाउन स्ट्रोक्स होते हैं, नोज में कभी भी हम अपवर्ड स्ट्रोक नहीं करते, और फोरहेड में आउटसाइड इनसाइड, इस तरह से आउटसाइड इनसाइड, एंड आईज के पास हमेशा ऐसे रिंग फिंगर से हम करेंगे। तो चाहे आप नाइट क्रीम, नाइट सिरम, डे क्रीम, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, क्लेंजर, टोनर, जो भी चीज अपने फेस पे लगा रहे हैं, उसका एप्लीकेशन हैज टू बी अपवर्ड स्ट्रोक। सो अपवर्ड करने से आप अपने स्किन को सैग होने से बचा रहे हो, उसको लिफ्ट कर रहे हो। ग्रेट ग्रेट रियली। तो गरिमा जी, बहुत अगर हम फेस की जैसे बात करें तो बहुत सारे लोगों को मतलब डबल चिन का इश्यू भी हो रहा है एंड फेस फैट्स के भी इश्यू हैं, तो उसके लिए भी कुछ है आसन ऐसे? फेस के तो बहुत सारे आसन हैं, जैसे कि मैंने बताया, पीपल कैन, आई हैव अपलोडेड सेवरल वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल जहां पे वो लोग रेफर कर सकते हैं एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस, बट क्विकेस्ट वुड बी कि आप अपने लोअर लिप को ऊपर करें, ऊपर वाले लिप के ऊपर इस तरह से, और उसके बाद अपनी चिन को सामने लिफ्ट करें और लेफ्ट और राइट वाला मूवमेंट। तो इससे पूरा ये जो डबल चिन वाला जो एरिया है, एक तो ये काफी कंट्रोल हो सकता है। सो दूसरा, आप ब्लो द एयर एंड ट्रांसफर, सो आप अपने मुंह को ऐसे फुलाएं, उसके बाद लेफ्ट और राइट में उसको सेंड करें। तो इसमें इतनी सारी मसल्स आपकी इंगेज हो रही हैं, एंड साथ ही साथ वो जो मसल्स इंगेज होने की वजह से यहाँ के अभी जो सारा, आप इसको करते करते अपना लेफ्ट राइट मूवमेंट भी कर सकते हैं। There's so many times I've done this while driving. People must be wondering, you know, I time it that way कि okay, since I don't get time for face yoga, so I'll do when I'm driving. So people might be looking at me making funny faces, but utilize your time. You're cooking in the kitchen, that is the best time, you know. So face yoga, but is very important, guys. You have to practice every day. So lower lip को ऊपर करें, and you can even practice holds in this. Suppose ऊपर किया तो 5 सेकंड का hold, and then you can feel the whole stretch. So the idea is to stimulate these muscles and just go left right left right left right. अमेजिंग, बहुत सिंपल एंड इजी वे है, और ये मतलब इजीली कर भी सकते हैं कहीं भी बैठे हुए, कोई भी टाइम, जैसे आप बोल रहे हो कि कार में बैठ के भी किए जा सकते हैं एनी टाइम। सो गरिमा जी, इट्स अ ग्रेट टिप्स। तो गरिमा जी, अभी मैं स्पेशली उन लोगों के लिए भी पूछना चाहूंगी जो आजकल घंटों लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स पे बैठ रहे हैं, और इसकी वजह से उनको बैक के, नेक के, स्पाइन के काफी सारे हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। सो ऐसे कुछ आसनास हैं ताकि वो इन चीजों से प्रिवेंट या क्योर हो सके? Yes, absolutely. In fact, अभी मेरा 5:30 बजे लाइव है मॉम्प्रेसो हिंदी पर, चेयर और डेस्क योगा के ऊपर, क्योंकि ये स्लाउचिंग की जो प्रॉब्लम है, इससे आपका जो पोस्चर है वो भी खराब होता है, पूरा स्पाइनल वर्टिब्रे का जो अलाइनमेंट है वो मिसअलाइन हो जाता है, और जिससे आपको लॉन्ग टर्म सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे आसान मैं ये बताना चाहूंगी कि आप बस अपने चेयर पे जहां पे भी बैठे हैं, सपोज यहाँ से बैठ के आप काम कर रहे हैं, तो अपने हाथों को इस तरह से ग्रैब करने की कोशिश करें पीछे से आपस में। इफ यू कैन सी दे आर जॉइंट लाइक दिस, नहीं हो सकता तो एक टॉवल रखें बीच में, जिससे आपका डिस्टेंस कवर हो जाएगा, और उसको खींचें और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों साइड से इस तरह से करें, बहुत जरूरी है। फिर कंधा संचालन इस तरह से, विवा संचालन, कंधा संचालन, और फिर इसको ऑल्टरनेट, तो इससे पूरे शोल्डर ब्लेड्स भी आपके ओपन होंगे, पोस्चर करेक्ट होगा, और साथ ही साथ एक तरह का वेक मी अप है ये, तो ये बहुत जरूरी है। आप इस तरह से स्पाइनल ट्विस्ट भी कर सकते हैं, दोनों साइड में पीछे की तरफ घूम के। तो वो स्पाइन आपकी जब ट्विस्ट होती है तो स्पाइन में बहुत तरह इम्पोर्टेंट फ्लूइड होता है हमारा, जिससे स्पाइन की हेल्थ जो सपल रहती है। तो जब हम स्पाइनल ट्विस्ट करते हैं, एक्टिव ट्विस्ट बैठे बैठे, तो उससे वो जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो बढ़ता है, और उससे स्पाइन, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं मेरुदंड, वो एक्चुअली वो जो गिटार होता है ना, वो वीणा दंड बोलते हैं उसको तो उसी की तरह है, क्योंकि अगर आप गिटार के स्ट्रिंग्स को बार बार ट्यून और ठीक नहीं करोगे, उनको नहीं बजाते रहोगे, तो वो जंक खा के खराब हो जाएगा। तो स्पाइन और गिटार ही, म्यूजिक के स्ट्रिंग्स ही म्यूजिक देते हैं उसे, नहीं तो गिटार का कोई पर्पस नहीं है। तो स्पाइन हमारी बॉडी के लिए वैसा एक ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट और म्यूजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
So to take care of the spinal health is very, very, very important. वेरी वेल से। तो गरिमा जी, जैसे स्पेशली मैं विमेन के लिए भी पूछना चाहूंगी कि मेंस्ट्रुएशंस के टाइम पे भी जैसे काफी सारे लेडीज को पेन इश्यूज होते हैं, रेस्टलेसनेस, अनइजीनेस, तो क्या उसके लिए भी कुछ है योगा में? यस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको हम पीएमएस बोलते हैं, उससे मैंने बहुत सफर किया है बिफोर आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रैक्टिस, लाइक 2-3 दिन के लिए मेडिसिन खाना, हॉट बैग लगाना। सो लकीली ऑल दैट हैज गॉन थैंक्स टू द प्रैक्टिस, बिकॉज जिस तरह के ट्विस्ट, बाइंड, कंप्रेशंस हम करते हैं योगा की प्रैक्टिस में, उससे आपके जितने भी ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को जो ट्रिगर करने के हार्मोन्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो आपका जो पीरियड का जो पीरियड है वो काफी स्मूथली निकल जाता है, पीएमएस भी बहुत कम होता है, स्किन की भी हेल्थ अच्छी रहती है। बट आई वुड सजेस्ट एवरीवन नॉट टू डू योगा आसनास ड्यूरिंग द पीरियड टाइम। On your first, second day, please refrain from doing any kind of yoga practice. सही कहा आपने। सो गरिमा जी, जैसे कि हम ओबेसिटी की बात करें तो वो तो आज वर्ल्ड वाइड मेजर इशू है, और ओबेसिटी से काफी सारे हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं लोगों में। बट जनरली लोगों का ये बिलीव रहता है कि योगा से वेट लॉस नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई वो लोग जिमिंग, क्रैश डाइट ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? See, for me, I have never ever tried any fancy fat diet or new age diet ever. I have always eaten food which is cooked at home, plant-based diet, healthy diet. I have eaten ghee. I eat every dessert, but I know when to eat. So in Ayurveda we say that आपके दोषा जो जितने भी हैं तीनों, वो तीनों के तीनों स्टेबलाइज तब होते हैं जब जो आपकी जो डाइट है वो सात्विक हो, ना कि तमसिक और राजसिक। तमसिक और राजसिक डाइट जो होती है वो जैसे कि जंक फूड, एक्सेसिव मीट इन योर डाइट, एरेटेड स्टफ, प्रिजर्व स्टफ, एक्सेसिव प्रोसेस्ड शुगर, इस तरह के जो फूड हैं वो स्टोर हो जाते हैं आपके बॉडी में जाके, वो आपकी आंतड़ियों से निकलते नहीं है 2-3 दिन तक। तो क्लेंजिंग ही नहीं हो पाई, बाहर से आप शावर लेते जा रहे हो, अंदर से आपकी बॉडी में जंक और कचरा फंसता जा रहा है ये सब खाने से, क्योंकि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई ना इस तरह के फूड को। दूसरा, इसलिए सात्विक डाइट यानी कि जो प्लांट बेस्ड डाइट होती है वो बहुत ही जरूरी है। एक तो वो 3 घंटे में ही आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है ताकि आप दूसरी मील के लिए रेडी हैं। और अगर आप होम प्रिपेयर्ड मील खाते हैं तो ऑनेस्टली यू डोंट हैव टू, people ask me how did you lose all your pregnancy weight? I put on almost 26 kgs in both my pregnancies. Yes, only way I have lost it is by just eating home cooked fresh food without any diet. Yes, what is important with age, when your metabolism slows down, you can practice intermittent fasting. As I was telling you that Ayurveda says that people say that you are what you eat, but Ayurveda says you are what when you eat. क्योंकि अगर आप सही समय पे नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी जो भी, आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, आप बोलो कि भाई मैं तो सिर्फ ओट्स और किनोआ और तरह का फैंसी जो डाइट फूड, कीटो डाइट, कितना भी अच्छा आप वो खाना खा लो, बट अगर आपकी बॉडी को डाइजेस्ट ही करना नहीं आता उसको, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब है, तो फिर कितना भी अच्छा खाना भी आपके लिए एकदम बेकार है। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को सशक्त करें, स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि आप जो भी खाएं वो एनर्जी में ब्रेकडाउन हो, न्यूट्रिएंट्स में ब्रेकडाउन हो, आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स में बहुत ही एक्टिवली अच्छे से ब्लड के थ्रू सप्लाई हो। सो वो बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ सीइंग कि and obesity, guys, I will still tell you, obesity is the only trigger factor for all the hitherto and serious lifestyle diseases. Don't take obesity, do not neglect it. A lot of people might call this as things like, they can cover up their obesity as body shaming or body image and this and that, but guys, obesity is obesity. It is going to lead you to diabetes, type 2 diabetes, cardiac disorders, heart disorders, cardiac disorders, as said, and many other skin diseases, mental diseases. You will
your self-esteem will always be on all-time low. There are so many things associated with obesity, so please watch what you eat and when you eat. गरिमा जी, आपने मतलब बहुत ही अच्छा डाइट के लिए बताया. इतना अवेयरनेस था नहीं कि किस तरीके से, मतलब है ना, बहुत लोगों को ये भी इश्यू रहता है कि वो लोग सोचते हैं कि हम कुछ खाते नहीं है फिर भी हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है. बट आज जैसे आपने डिस्क्राइब किया तो उससे पता चल रहा है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं एक्चुअली. राइट. तो बहुत अच्छे से बताया आपने. तो गरिमा जी, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि है ना, सिंपल एंड इजी योगा रूटीन फॉर सुपर बिजी पीपल, बिकॉज मेन रीजन आजकल का यही है कि लोगों के पास यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है. समय की कमी सबके पास है, पर बहुत ही जरूरी है कि अपने लिए जरूर समय निकालें. अब एयरलाइन में भी यही बोलते हैं कि अपने मुंह पर नकाब ऑक्सीजन का, हवा का दबाव कम होने पर अपने मुंह पर पहले लगाएं, फिर अपने बच्चे, अपने पैसेंजर सब पे लगाएं. तो अपने लिए सेल्फ केयर गाइस बहुत जरूरी है. और अगर आपने सेल्फ केयर की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है, सो टुडे इज द डे, नॉट टुमारो. नेवर प्रोक्रेस्टिनेट योर हेल्थ, बिकॉज योर हेल्थ इज द रियल वेल्थ. Rest everything will fall into place, but if you don't have your own body, nothing will look good in this world. So at least honor and respect where you live. This is your permanent home. Yeah, very well said. तो मैं भी वही कहना चाहूंगी मेरे व्यूअर्स को कि प्लीज, कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, सो गिव योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर हेल्थ. Yes. सो गरिमा जी, मैं अभी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगी आपसे. सो आर यू रेडी? Yes. एक आसन जो आपको टफ लगता हो. मयूरासन. Oh. और एक आसन which you love to do. Headstand. Shishasana. Oh wow. Okay. So any tips for budding yoga instructor? Yes. This can't be a rapid fire question. I'll take 2 minutes to answer this. Yeah, definitely. That because of the emergence of this COVID-induced lockdown, I see a lot of people calling themselves as a yoga teacher or trainer, which is good because world needs more people. But you are taking charge of somebody else's body. It's a big job to be able to coach and mentor and tutor somebody, because they might have some history which you need to acknowledge and address. So you have to be a subject matter expert. So I'm saying that just by calling yourself a yoga teacher, you don't become. You really have to give years of your, it is a sadhana, it is a guru shishya parampara. You take it from your lineage, from the legacy of a guru. It's a vidya given to you. It cannot just come by practicing some fancy asana. It is a lot of hard work, years of dedication and experience of teaching that makes you a good yoga instructor. So please work on these things. So Garima ji, what is your life mantra? खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता. This is the mantra. Very well said. और गरिमा जी, अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर नहीं होते तो क्या होते? I am also, my mainstream profession is also of a image consultant. I have been coaching and mentoring individuals and a lot of corporates on inside out transformation. So that is my parallel profession. Okay. And what is your life dream? Life dream is to till my last breath, when I look myself into the mirror, I should be able to answer this question to myself, that did I live a full life, which my way, not somebody else's way, the way I wanted to live? That's one question. And the second question is that did I hurt anyone intentionally? And if I did, then did I do something to amend it or change it or to apologize? So till the time I can't answer these questions as yes to myself, I don't think I lived a good life. Oh, wow, बहुत amazing है ना आंसर्स दिए गरिमा जी आपने.
सो गरिमा जी मैं लास्टली ये पूछना चाहूंगी कि आपकी लाइफ जैसे खुद बहुत लोगों के लिए इंस्पायर है, और आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, एज यू आर अ सिंगल पेरेंट, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। सो इसके बावजूद भी आप खुद को इतने वर्सेटाइल रखते हैं, इतना रेलेवेंट रखते हैं, एंथुजियास्टिक, हैप्पी ऑल द टाइम। सो हाउ यू कीप योरसेल्फ सो मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड? I think my kids give me so much of that energy because I have come from a phase where I was left with a choice to either just keep crying in self-pity and like think of me कि अब तो मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, or I look at my kids and tell myself that oh my god, I have to lead by example. Tomorrow when they grow up, they should be able to look up to me, that we had a strong mother who never gave up no matter what. So with that thought, every day I keep going, and people say that single parenting is tough. I would say there is nothing single about being single parent. You have double work, double duties, and double responsibilities, but double the rewards, double the hugs, and double the love. Wow, amazing. So thanks a lot, Garima ji, and especially a wonderful tips which you have given. And what is the importance of yoga in our life, वो बहुत ही अच्छे से आपने समझाया है। एंड डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में योगा को अडॉप्ट करेंगे एंड अपनी लाइफ में हेल्थ एंड वेलनेस को लाएंगे। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। Thank you so much for having me, Vedika, on this wonderful interaction. I really had great fun talking to you, and I'm so happy if I'm able to inspire or touch even one person to really pull out that mat and get started with practice. So I'll be very honored. And in case somebody wants to know more about my work, my yoga practice, they can subscribe my YouTube channel. It's called Garima Bhandari. Thank you for having me, Vedika. थैंक्स अ लॉट। हम सब लाइफ में सक्सेस, मनी, इन सब के पीछे भागते रहते हैं और अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, बट अब ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ, फिटनेस एंड योगा के इम्पोर्टेंस को जानने लगे हैं। इसीलिए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लाखों लोग मिलके योगा साथ में करते हैं। सो आई विश कि योगा की पॉपुलैरिटी ऐसे ही बढ़ती जाए और जो हमारा स्वस्थ भारत का मिशन है वो हम जल्द से जल्द अचीव करते हैं। सो प्लीज रोज योग कीजिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो। गॉड ब्लेस यू ऑल।